محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال تعالى في مقام آخر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، گنج شیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر و اسکندر و جمچل بسے، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و غم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلے تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر وقد قبروں میں گاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، یہ زندگی چند روزہ ہے کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ یہ دنیا سیر و تفریح گاہ نہیں، یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں، بلکہ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، پڑ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل، باز آ ہاں باز آ اے بد عمل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل۔
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ یہ زندگی انسان کی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ایک ننا سا دیا۔ زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ایک ننا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کر بجھا دیتا ہے۔ یا سر مژگاں غم کا تھرکتا ہوا ایک آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جیسے ایک انسان کے آنسو جب پلک جھپکتی ہے مٹی میں جا ملتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے، چند پل کی محتاج ہے۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، پڑ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بد عمل۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ معزز حاضرین، عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی اس زندگی کی حقیقت کو پہچانے اور پھر اپنے مرنے کے بعد کی وہ بندہ تیاری کرنے لگ جائے، آخرت کی تیاری کرنے لگ جائے۔ حدیث شریف کے اندر ایسے انسان کو عقل مند فرمایا گیا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، انسانی زندگی کب ختم ہو جائے، انسانی زندگی کب فنا ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیں اور ہم مرنے کے بعد کی تیاری کریں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس میں ہم سے حساب ہماری زندگی کا کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، ہم نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، ہم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ہم نے لوگوں کے جو حقوق چھینے تھے اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، ہم نے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم جانتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت آئے گی، وہ دن آئے گا جس دن سورج کی روشنی کو چھین لیا جائے گا، وہ دن آئے گا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹے گا، وہ دن آئے گا جس دن اس زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ دیا جائے گا، وہ دن آئے گا کہ جس دن ستارے جھڑ پڑیں گے، وہ دن آئے گا کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑ کو ایک ہی ضرب میں چورا چورا کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹے گا، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ جب ہمیں یقین ہے کہ وہ دن آئے گا، وہ قیامت آئے گی اور جس کے اندر ہمیں کھڑا کیا جائے گا، جس دن سورج ہمارے سروں پر ہوگا، اس دن ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، اس دن ننگے بدن کھڑا کیا جائے گا، انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ روایت کے اندر آتا ہے وہ انسان اپنے گناہوں کے بقدر پورا کا پورا اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا۔ آج جو گرمی کا ٹائمپریچر جو ڈگری چل رہی ہے، اس شدت کے ساتھ جو گرمی پڑ رہی ہے، اس میں دوپہری کے وقت میں انسان ننگے پاؤں نہیں چل سکتا، کیوں؟ اس سورج کی گرمی اس سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، جبکہ سورج بہت دور ہے، وہ دن یاد رکھو جس دن ہم اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، سورج ہمارے سر پر ہوگا، بہت سے انسان ہوں گے کہ جن کے چہرے پر شرمگاہ لٹکی ہوئی ہوگی، بہت سے انسان ہوں گے جو چہرے کے بل چل رہے ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ چہرے کے بل کس طرح چلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے ان کو پاؤں کے بل چلایا ہے، وہ ذات ان کو چہرے کے بل چلانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقل مند انسان وہی ہے جو گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگ جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بلکہ یوں کہا جائے اللہ کے بہت بڑے ولی۔ ایک گنہگار شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہہ رہا تھا، حضرت
मैं गुनाह करता हूं, गुनाह करने में मजा भी आता है और अल्लाह के अजाब से डरता भी हूं, क्या अल्लाह का अजाब होगा? कोई ऐसी तरकीब बता दीजिए मैं गुनाह भी करता रहा हूं और अल्लाह के अजाब से भी बच जाऊं। अल्लाह वाले अजीब होते हैं, ये धक्के नहीं देते, ये भगाते नहीं है, ये परेशानी को सुनते हैं, उसका हल निकालते हैं। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, अच्छा जब तुम गुनाह क्या करो तो एक काम कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरों से ओझल होकर गुनाह कर लिया करो। वो नौजवान कहने लगा, हजरत ये कैसा हो सकता है? अल्लाह की नजरों से ओझल मैं कहां जाऊं? अल्लाह की नजरों से तो कोई ओझल नहीं हो सकता। कि अच्छा जब पहली तरकीब तू ये नहीं कर सकता तो दूसरी तरकीब कर ले। कि हजरत दूसरी तरकीब भी बता दीजिए। वो दूसरी तरकीब क्या है? फरमाया दूसरी तरकीब ये है कि तू अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस जमीन को छोड़कर गुनाह कर लिया कर। ए अल्लाह, ये जमीन तेरी मिल्कियत है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान ये तेरा मुल्क है, तेरी मिल्कियत है, मैं आपकी जमीन के अंदर नहीं रहता, मैं कहीं और जाकर गुनाह कर लूंगा। तो उस बंदे ने कहा, हजरत मैं जमीन को छोड़कर कहां जाऊं? मेरे लिए कौन सी और जगह है जिस जगह पर मैं चला जाऊं? तो हजरत ने कहा कि तीसरी तरकीब कर ले। तो हजरत वो तीसरी तरकीब क्या है? वो तीसरी तरकीब ये है, तो अल्लाह का रिज़्क खाना छोड़ दे। मैं तेरा खाता नहीं, तेरा मानता भी नहीं, मैंने तेरा खाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं तेरी बात मानता भी नहीं हूं। वो शख्स कहने लगा, हजरत अल्लाह का रिज़्क छोड़कर मैं कैसा जिंदा रह सकता हूं? ये तो मुझसे नहीं हो सकता। तो हजरत ने अगली बात कही कि अच्छा जब तुझसे ये बात नहीं हो सकती तो एक काम करना, जब मुनकर नकीर तेरे पास कब्र के अंदर आए, तुझसे सवालात करें तो तू उनके सवालात का जवाब ना देना, और बल्कि ये पूछना कि तुम मेरे बिना इजाजत के मेरे घर के अंदर कैसा आ गए, मेरी कब्र में कैसा आ गए, नो एंट्री, तुम क्यों आ गए हो? तो वो शख्स कहने लगा, हजरत फरिश्तों को, वो भी मुनकर नकीर कि जिनकी आंखें नीली, मैं उनको कैसे इस बात को कह सकता हूं? तो हजरत ने कहा, अच्छा जब तुझसे ये नहीं हो सकता तो एक काम कर लेना, आखिर काम क़यामत के दिन जब तुझे फरिश्ते अजाब देने वाले फरिश्ते तुझे जब सर के बाल के जरिए पाँव के जरिए तुझे जब घसीट कर जहन्नम की जानिब ले जा रहे हो तो उनके हाथ को झपट्टा मारकर एक तरफ हो जाना, मैं तो नहीं जाता। तो वो शख्स कहने लगा, हजरत मैं ये कैसा कर सकता हूं? तो हजरत ने फिर एक बात कही, जब तू ये इनमें से कुछ नहीं कर सकता ए नौजवान, फिर तू गुनाह क्यों करता है? उसके दिल पर ये बात ऐसी लगी कि उसने फौरन कहा कि मैं तौबा करता हूं और मैं अल्लाह से अहद करता हूं जब तक मेरी जिंदगी है मैं उसके बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें गुनाहों से अपने आप को बचना है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गुनाहों की लज्जत की मिसाल ऐसी है जैसा खारिश, इंसान खुजाता है, कितना मजा आता खुजाने में, लेकिन वही खारिश जहां उसने खुजाया है वही जख्म बनता है। तो गुनाह करने में मजा तो आता है, लेकिन वही उसके जहन्नम में जाने का जख्म बनेगा, जहन्नम की घाट में उतरने का वही जख्म बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अक्लमंद इंसान वही है जो मरने के बाद की तैयारी करे। हदीस शरीफ के अंदर आया है, अक्लमंद इंसान वो है जो मरने के बाद की तैयारी करे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें मरने के बाद की तैयारी करनी चाहिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अजीब बात फरमाते हैं, ए दोस्त तुझे क्या मालूम कि बाजार के अंदर वो कफन पहुंच चुका हो जिसे तेरा कफन बनना है। ए दोस्त तुझे क्या मालूम कि बाजार के अंदर वो कफन आ चुका हो जो कफन तेरे बदन पर आना है, और तू गफलत के आलम में उसी बाजार के अंदर टहल रहा होता है और आखिरत की तैयारी नहीं करता। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, ए दोस्त मौत बरहक है, कफन के मिलने में शक है। मौत बरहक है, यकीनन आएगी, लेकिन कफन के मिलने में शक है। पता नहीं कि तुझे कफन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, नहीं मालूम तू हादसाती मौत का शिकार हो जाए। एक वाकया हमारे हजरत जी ने लिखा है खुतबात फकीर के अंदर, एक शख्स को किसी ने कत्ल कर दिया, उसकी लाश दरिया के अंदर डाल दी। कई दिन के बाद उसकी लाश को निकाला गया, उसका चेहरा पहचानने के काबिल नहीं था, शनाख्त नहीं हो रही थी।
पुलिस वालों ने तफ्तीश की लेकिन चेहरा पहचानने का काबिल नहीं, लेकिन उसके जिस्म पर जो कुर्ता पजामा था उससे लगा कि हाँ ये मुसलमान है, और वो बस्ती भी मुसलमानों की थी। पुलिस वालों ने मुसलमानों के हवाले उस लाश को कर दिया। इमाम साहब ने कहा कि देखो लाश तो आ चुकी है लेकिन इनके कफन का भी इंतजाम करना है। तो लोगों ने कहा एक काम करो, इतना पैसा हम कहां से करें, एक काम करो आप ऐलान कर दो कि एक लावारिस लाश है, उसके कफन में पैसे की जरूरत है, लिहाजा आप पैसा लाइए। इमाम साहब ने ऐलान किया, कोई 10 रुपए ला रहे हैं, कोई 20 रुपए, कोई 30 रुपए, इस तरह तकरीबन आधा घंटा उसके कफन के लिए चंदा होता था। आधा घंटा कफन का चंदा हो गया, कफन भी आ गया, फिर उसके बाद उसको गुस्ल दिया गया, कफनाया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई। फिर उसके कई दिन बाद यानी दफनाने के कई दिन बाद पता ये चला कि वह पुलिस तफ्तीश में लगी हुई थी, इत्तला ये मिली कि फला गांव का नंबरदार आदमी था, बड़ा जमींदार था, 4 मुरब्बा इस पर जमीन थी, करोड़ों इसके पैसे इसके अकाउंट में थे, और किसी ने दुश्मनी की वजह से इसको कत्ल कर दिया था। लेकिन इसको क्या मालूम था मैं अरबों खरबों पति हूं, मेरे पास 4 मुरब्बा जमीन है। इसको क्या मालूम था कि मेरे जिस्म पर जो कफन आएगा वो चंदे के पैसों से कफन आएगा। इसलिए वो बुजुर्ग फरमाते हैं, ऐ दोस्त, मौत बिल्कुल बरहक है, कफन के मिलने में तो शक है लेकिन मौत के आने में बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं। अजीब बात है, अगर 2 लाइनें लगी हुई हैं, इधर से कोई चीज तकसीम की जा रही है तो हम ये सोचते हैं अब इसको मिल गई अब मेरा नंबर है, इसको मिल गई अब मेरा नंबर है, ये लाइन की तकमील हो गई अब मेरा नंबर है, अब ये चीज मुझे मिलेगी। लेकिन ये नहीं सोचते फला शख्स को मौत आ गई, फला को हार्ट अटैक आ गया, उसका इंतकाल हो गया, फला शख्स का इंतकाल हो गया, अब जब उसका नंबर है तो कल को मेरा भी नंबर आ सकता है, लिहाजा उसके आने से पहले पहले मुझे मरने की तैयारी करनी चाहिए। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं कि मरने के बाद इंसान फिर दुनिया के अंदर वापस नहीं आ सकता। अगर उसने बुरे आमाल किए होंगे वो पछताएगा, कहेगा भी लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ए अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर दोबारा मोहलत दीजिए ताकि सालिहन, ताकि मैं नेक अमल करूं। लेकिन अल्लाह फरमाएंगे कल्ला, हरगिज़ नहीं, अब तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। वहां बंदा अफसोस करेगा, पछताएगा। इसलिए मेरे भाई जब वहां पछताएंगे, अफसोस करेंगे, उससे पहले ही हम आंखें बंद होने से पहले अल्लाह से तौबा करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं और आखिरत की तैयारी करें। यही अक्लमंद इंसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा क़ज़ाए हाजत फरमाई। क़ज़ाए हाजत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयम्मुम फरमा रहे थे, जबकि सामने दरिया था। एक साहबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, सामने दरिया है और आप तयम्मुम फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, दरिया तो सामने है, पानी भी है, और आप तयम्मुम फरमा रहे हैं, ये क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन साहबी रसूल से फरमाया, ए मेरे साथी, मैंने तयम्मुम इसलिए किया है, सामने दरिया है, वहां तक मैं पहुंच पाऊंगा भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने तयम्मुम कर लिया। मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी इतनी है या नहीं कि मैं उस दरिया तक पहुंच पाऊंगा भी या नहीं पहुंच पाऊंगा। साहबे किराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम मौत के बारे में क्या कहना चाहते हो? तो एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं सुबह करता हूं तो मुझे नहीं मालूम कि मैं शाम कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा। एक सहाबी रसूल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने 4 रकात की नमाज की नीयत बांधी, पहली रकात के अंदर हूं, अब मैं सलाम फेर पाऊंगा भी या नहीं फेर पाऊंगा, मुझे कोई गारंटी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक तरफ इंसान सलाम फेरता है तो मुझे ये उम्मीद भी नहीं कि मैं दूसरे तरफ सलाम फेर पाऊंगा भी या नहीं फेर पाऊंगा। रिवायत के अंदर आता है, जब मोमिन बंदा दुनिया से जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आसमान, ये जमीन रोते हैं। बल्कि एक हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जिस आसमान की जगह से, जिस आसमान के दरवाजों से उसके लिए रिज़्क उतारा जाता था, वो आसमान के दरवाजे उसके लिए रोते हैं। एक सहाबी रसूल हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वफात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जनाजे में पंजे के बल चल रहे हैं। सहाबे किराम ने आपको देखा,
हमने आप अलैहिस्सलाम को किसी और जनाजे के अंदर पंजों के बल चलते हुए नहीं देखा। सहाबा किराम से रहा नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हमने हजरत साद के जनाजे में आपको पंजों के बल चलते हुए देखा है। या रसूल अल्लाह, हमने इससे पहले आपको कभी पंजों के बल चलते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा हजरत साद के जनाजे में इतना फरिश्ता आया था, इतना फरिश्ता आया था कि मजमे के अंदर पांव रखने की जगह भी नहीं थी, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। और मेरे सहाबा हजरत साद रजी अल्लाह, बाद में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात पर अल्लाह का अर्श 3 दिन तक रोता रहा। मालूम यह हुआ अल्लाह का जो नेक बंदा, अल्लाह का मोमिन बंदा, ईमान वाला बंदा जब दुनिया से जाता है तो आसमान भी रोता है। जिस जगह पर बैठकर वो अल्लाह का जिक्र करता है वो भी रोती है। जिस जगह पर वो अल्लाह की इबादत क्या करता था वो जगह भी रोती है। अल्लाह का अर्श भी रोता है। मेरे भाइयों, हमें नेक बनना चाहिए, गुनाहों से तौबा करके, पक्की सच्ची तौबा करके अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। वही अक्लमंद इंसान है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया है ताकि हम तुम्हारे आमाल का जायजा लें, तुम्हें जांचें, तुम्हें परखें कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरे अमल करता है और कौन अच्छे से अच्छे अमल करने वाला है। मालूम ये हुआ जिंदगी मजे लेने के लिए नहीं है, जिंदगी सैरो तफरी करने के लिए नहीं है, जिंदगी पिकनिक पर जाने के लिए नहीं है, जिंदगी गाने सुनने के लिए नहीं है, जिंदगी बर्थडे बनाने के लिए नहीं है, जिंदगी ऐशो आराम की गुजारने के लिए नहीं है, जिंदगी लोगों के हुकूक छीनने के लिए नहीं, गरीब को सताने के लिए नहीं, पड़ोसी को सताने के लिए नहीं, बहन के हक छीनने के लिए नहीं, माँ बाप को सताने के लिए नहीं, बल्कि कुरान करीम की इस आयत से मालूम होता है कि जिंदगी अल्लाह की इबादत के लिए है, जिंदगी नेक अमाल करने के लिए है। सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को, हमने जिनों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा फरमाया है। क्या मालूम, क्या अल्लाह ने हमको सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया तो ये काम काज, ये कारोबार और इसी तरह शादियां, ये फिर क्या है? मेरे भाइयों, ये तो जरूरियात जिंदगी में से है। मकसद जिंदगी अल्लाह की इबादत है, मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी है। और वही इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब है और वही इंसान आखिरत के अंदर भी कामयाब है जो इस जिंदगी की हकीकत को समझे और फिर आखिरत की तैयारी करे। ये इकामत हमें पैगाम सफर देती है, ये इकामत हमें पैगाम सफर देती है, जिंदगी मौत के आने की खबर देती है। ये जिंदगी अल्लाह ने हमें जो दी है, जो अल्लाह ने अपने हुक्मों की फर्माबरदारी के लिए, ये मौत फिर आ जाएगी, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम सुना होगा, हजरत दाना बहलोल रहमतुल्लाह अलैह। बहुत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको हिकमत की बातों से नवाजा था, बहुत दानाई बातों से नवाजा था। आपने बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने हारून रशीद का जमाना पाया। हारून रशीद बादशाह वक्त थे और बादशाह वक्त इनसे हंसी मजाक किया करता था, बिला तकल्लुफ की बातें करता था। और आपने दरबारियों से यह भी कह रखा था कि अगर ये शख्स आए, इनको रोका ना जाए, इनको आने की इजाजत दी जाए। एक मरतबा का वाकया, हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद की खिदमत में आए। हारून रशीद के हाथ में छड़ी थी। हारून रशीद ने बहलोल दाना के यूं छड़ी मारी और कहा, ऐ बहलोल, मैं ये छड़ी तुमको बतौर अमानत के देता हूं और ये छड़ी आप अपने पास रखना और ये छड़ी उस शख्स को देना जो आपकी नजर में तुमसे ज्यादा बेवकूफ। बादशाह का असल कहने का मकसद यह था कि बहलोल, तुम मेरी नजर में सबसे ज्यादा अहमक, सबसे ज्यादा बेवकूफ। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने वो छड़ी अपने पास रख ली, चले गए। काफी वक्त इस वाक़े को गुजरा। एक दिन पता चला बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह को कि बादशाह वक्त की तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि ऐसी बीमारी का शिकार बादशाह है कि जिसमें इंसान को मौत आ जाती है, मरजुल मौत का शिकार है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह उनकी इयादत के लिए चल पड़े। देखा चारपाई पर लेटे हुए हैं। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बादशाह वक्त,
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, हाल चाल कैसे हैं, तबीयत तो ठीक है ना। सलाम का जवाब दिया और कहा कि तबीयत अब ठीक नहीं है, बल्कि अब तो सफर दरपेश है। बहलोल ने पूछा, अच्छा सफर दरपेश है, कहाँ का सफर है? कहा आखिरत का सफर है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो आप वहां कब तक वहां से आप कब तक आओगे? कहा यह आखिरत का सफर लंबा सफर है, इससे कोई वापस नहीं आता। तो फिर बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अच्छा आपने वहां कितने खेमे गाड़ दिए हैं, कितने बॉडी गार्ड भेजे हैं, कितने फौजी लाव लश्कर आपने वहां भेजे हैं? अब बादशाह की तबीयत वैसी ठीक ना थी और फिर इस तरह की बातें, तो बादशाह का दिमाग खराब हो गया और बादशाह ने कहा, बहलोल फिर तुम वही पागल वाली बातें कर रहे हो, वही अहमकाना वाली बातें कर रहे हो जो तुम पहले करते थे। मैंने बता दी यह आखिरत का सफर है, लंबा सफर है, इससे कोई वापस नहीं आता और इंसान इसमें अकेला जाता है, तने तनहा जाता है, कोई साथ नहीं जाता। उस वक्त हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही। वो ये बात थी कि हजरत आपने मुझे एक छड़ी दी थी और ये कहा था, ए बहलोल आप मेरी इस छड़ी को उस शख्स को दे देना जो तुम्हारी नजर में तुमसे ज्यादा बेवकूफ हो। बादशाह वक्त मैंने खूब तलाश किया, मेरी नजर में तुमसे ज्यादा बेवकूफ मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए कि आपने मरने के बाद की तैयारी ही नहीं की, आखिरत की तैयारी ही नहीं की। मैं आपके दुनिया के सफर देखा करता था, जबकि वो सफर या तो 1 महीने का होता था या 15 दिन का होता था। आप उस सफर की तैयारी बरसों पहले कर दिया करते थे। वहां खेमे गाड़ देना, वहां फौजियों को भेज देना, बॉडी गार्ड को भेज देना, जबकि वो सफर 15 दिन का होता था या महीने का होता था। और ये आखिरत का सफर इतना लंबा सफर है कि इससे वापस भी नहीं आना, और आपने इसकी तैयारी नहीं की। लो आप अपनी छड़ी को अपने पास रख लीजिए। असल में बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये बात फरमाई थी, वो ये बात हदीस शरीफ की रोशनी में फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत, अक्लमंद इंसान वही है जो मरने के बाद की तैयारी करे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपनी इस गुनाहगारी जिंदगी से तौबा करनी चाहिए। नहीं मालूम मौत कब आ जाए, मौत की कुछ पता नहीं, मौत कब आ जाए। अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे गुनाह करते करते मौत आ जाए, तो मेरे भाइयों जरा आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए उस इंसान के साथ कब्र में, फिर उसके बाद मरने के बाद क्या आलम होगा। और दूसरी जानिब जो बंदा अल्लाह की फर्माबरदारी करके गया, हदीस शरीफ के अंदर आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के बारे में, जो बंदा अल्लाह की फर्माबरदारी करके गया है, उस ईमान वाले बंदे के बारे में अपने फरिश्तों से फरमाते हैं कि जब उसको कब्र के अंदर रख दिया गया तो तुम उससे ये कहना, नम का नौमतिल अरूस, कि तू इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सो जाती है। उलमाए किराम ने यह एक नुक्ता निकाला है कि अल्लाह ने यहां दुल्हन की नींद क्यों कहा। अल्लाह ये भी कह सकते थे तुम मीठी नींद सो जा, तू आराम वाली नींद सो जा, राहत वाली नींद सो जा। तो उलमाए किराम ने यहां नुक्ता निकाला कि असल में दुल्हन को जो उठाता है, उसका जो महबूब होता है, जो उसका शौहर होता है, उसको वही उठाता है। तो मोमिन को क़यामत के दिन वही उठाएगा जो मोमिन का महबूब हकीकी होगा। और जब दुल्हन की आंखें खुलती हैं तो सामने उसका महबूब होता है, उसका शौहर होता है। जब ईमान वाले बंदे की क़यामत के दिन आंखें खुलेंगी तो सामने रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम का दीदार उसको नजर आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें नेकी और तक़वा वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए। गुनाहों से तौबा करके नेक आमाल के मुताबिक नेक आमाल करें, आखिरत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें। अल्लाह हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।